તો સૃષ્ટિ આપણને ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન સ્ટડી વિશે કહેશે. સૃષ્ટિ 7th ગ્રેડમાં ભણે છે અને આપણી ગેસ્ટ છે આજે. Good evening everyone. I am Srushti Belkar. Today I am going to brief you about online studies versus offline studies. So as we know, everything has its plus point and minus point too. So we will be discuss about both of them, like the online class has their own advantages such as it can good thing and other advantages such as a list that need to travel. We do not need to travel anywhere. We have to just be at home and study it. It will be also like protect us from pollution. As you can see nowadays it is encouraged, but due to this lockdown and unlock procedure going on, it production a fair away and social distancing is maintaining because each and every student is at their home. Then it improving the digital skill, like before the online class I have not to use any of the video conference app, and now I have little bit idea. Even I am 7th class student. I have no idea of, I have idea of how to do or how to like use to this video conference app, digital app, and another it is save the times, and it is a really cheap, very cheap as compared to your this. But I do not know why is the school still charging the same fees from us. They should really reduce their fees by 50%. But what to do, because the fees is declared by the trust and they managing the community, so we should not talk about that. It will be create a self discipline and responsibility. Like when we go to school, it is just we are being punished to the responsibility, but when we are our own freedom at home, that it is like we create our own internet hour on the self discipline to okay, see time is now 4 o'clock, so I have to join the Zoom meeting to attend this. One of the this my own interest is when I like to development, and I have become more safe to able to from the online class. So such things are a advantages and disadvantages. Let's focus on like to need a good conversation at the less or good or 3G conversation to have a unique decision going on, and have to see many people with even with a 4G plan. They do not get 30 MB 30 KB or 22 GB speed, such as one of my friend living in village. He get around 25 KBs, which is too low from any video conferencing, and to get a good quality of the audio and video fact. So it is like a very big drawback of it.
because even every connection is not uniform everywhere, at least not in India, and to company thus claim, but it is not so, and another is like it requires self interest. If a student thinks that I do not want to attend the class, the teacher what do they do? They will remove me from the WhatsApp group or put my absent. Nothing can happen more than that. So because we do not have to face to teacher again on the next day was a kind disadvantage, I will say. And other thing is, I know I'm quite teenager girl, and I am so I would attend and understand the function of the mobile and how to use and it. But what about those who are not even at a even kid of the 5 year age? They do not know about online studies. What about them? So it is not really self-dependent from any age of the student. Even some student may face the difficulty in the latest eyes from the eyes pain and some at a very young age. Such problem will be rise if this will be continued. So that's it. Thank you so much. थैंक यू सृष्टि. मतलब ये हाँ. है कि सब कौन से ऑनलाइन क्लासेस कौन से बोलते हैं ना, एक माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट दोनों होता है. ओके. तो जैसे देखो, अभी मेरे से भी छोटे होते हैं ना बच्चे, उनको तो मोबाइल के फंक्शन वो तो आते हैं नहीं, तो उनके लिए बाद में आइस पैनिक होता है ना. आइस ज्यादा देर तक मोबाइल देखते हैं तो हमारे आइस को ना दर्द होता है. राइट राइट राइट. ऐसा होता है. हाँ, तो ये एक ड्रॉबैक है. और जैसा तूने बोला कि इंटरनेट कहीं जगह नहीं होता, स्पीड कम होती है विलेज में. हाँ, मेरा एक फ्रेंड है ना. अच्छा. तो उसको ना गांव में रहता है ना. हाँ. तो उधर है ना, उसका कनेक्शन होता है ना, स्पीड बहुत धीमा आती है, तो वो कभी कभी वीडियो होता है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाता. मैम एब्सेंट देता है. राइट राइट राइट. सही बात है. ये सब लिमिटेशंस है. और एडवांटेज क्या है? एडवांटेज घर में उठ के रेडी होने की जरूरत नहीं, सीधा उठ के बैठ जाओ. फिर टीचर सिखा रहे हैं तो साथ में नाश्ता भी करो, चाय भी पियो, लंच भी करो. राइट है ना? ये सब एडवांटेज है कि नहीं है? है ना? ओके, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड. विवेक सर. वेलकम. हाँ सर. हाँ विवेक. तो विवेक अपने कुछ हैप्पीनेस के बारे में बताएगा. हेलो एवरीवन. हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस. हमें हैप्पी होने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है. हम क्या करते हैं, अभी आजकल लोग क्या करते हैं कि हैप्पी होने के लिए दूसरे के अंदर हम लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. मतलब कि आप दूसरों में खुशी ढूंढते हो, बाकी बल्कि खुशी आपके पास भी हो ही सकती है. कई बार लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि मैं मेरी लाइफ से खुश नहीं हूँ. ऐसा मेरे साथ भी हुआ था. पहले मैं भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जब 12th में था तो मेरा मैथ्स का पेपर खराब गया था, बराबर. तो फिर मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे को एकदम सबसे बुरा लड़का हूँ, पर ऐसा मतलब मेरा सबसे बुरा गया था पेपर. सबका अच्छा गया था पर मेरा बुरा गया था. तो मैं क्या सोच रहा था कि मेरा ही पेपर, खाली मैं दुनिया में सबसे खराब हूँ कि मेरा पेपर खराब गया था. पर उसके बाद मैंने एक दिन निकल गया. उसके बाद मैंने देखा कि मेरे लाइफ में बहुत सारा कुछ अच्छा भी हुआ था. पहले हम लोग क्या करते कि खुशी के लिए हम लोग
सब बाहर वालों के उस पर डिपेंडेंट होते हैं। हमें कभी भी किसी लोगों की तरह हमें मैनिपुलेट नहीं हो जाना चाहिए। फिर आपको कभी भी किसी की मतलब अभी कभी आपने कुछ अच्छा काम किया था, लोग आपकी तारीफ नहीं कर रहे, तभी आपको कुछ मतलब डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। फिर ये देखो, ये क्या लिखा है, डिफरेंस दैट मेक्स डिफरेंस। बराबर, इसका मीनिंग आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। अभी वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है कि लोग क्या करते हैं कि लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत कम लोग होते हैं जो पब्लिक के सामने बोल पाते हैं। वो लोग कैसा सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, तो फिर मैं दुनिया से अलग हो जाऊंगा। ये वो अपने थॉट्स दुनिया के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि दुनिया उनसे अलग हो जाएगी, कुछ मैं गलत तो नहीं कर दूंगा ऐसा। अभी हम लोग ऐसा देते हैं कि दो आदमी है बराबर, उन लोग को ऐसा टास्क दिया गया कि उनको है ना पब्लिक के सामने कुछ बोलना है। तो एक पर्सन होगा वो बोलेगा कि मैं बोल सकता हूँ, और दूसरा बोलेगा कि मैं नहीं बोल सकता। मतलब कि एक पर्सन होगा वो 1% वाले में आ जाएगा, बाकी वो दूसरा पर्सन होगा 99% में आ जाएगा। मतलब कि 1% लोग ही ऐसे होते हैं कि जो मतलब पब्लिक स्पीकिंग का डर पूरी वर्ल्ड को है, ऐसा नहीं कि खाली इंडिया में ये प्रॉब्लम है। फिर आप देखोगे कि इंडिया के लोग इतने बिजी देश है कि उनके पास दूसरों की प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन है, उनके पास दूसरे की गलती निकालने के ये टाइम है, पर अपनी खुद को सुधारने के लिए टाइम नहीं है। अभी मान लो कि आप अपने फ्रेंड को बताएंगे कि मुझे यूट्यूब चैनल चालू करना है, तो वो तुरंत आपको बताएगा कि ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का। और अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो आपसे टिप्स लेगा कि तूने ऐसा कैसे किया था। बराबर, आपको यही देखना है कि 1% मतलब कि आप देखो यहाँ पे आप भी देखोगे कि उगते सूरज को दुनिया प्रणाम करती है, और डूबते सूरज में लोग उनकी गलतियां निकालती है। वो बोलते हैं कि ये तो ऐसा कर रहा था, ये ऐसा हो गया उसके साथ। बराबर, आपको ऐसा सोचना है कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता। मतलब आपको कॉन्फिडेंस रखना है सब में। अभी देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो बराबर, आलसी बनना कितना आसान होता है कि देखो मान लो कि मेरा कल एग्जाम है बराबर, तो मेरे पास दो ही रास्ते है कि एक मैं पढ़ाई कर लूं, और वरना मैं ऐसे ही रहने दूं। बराबर, पढ़ाई कर देखो उसमें दो ऑप्शन, एक में से 99% जो कम पढ़े वाले बच्चे होंगे वो क्या सो जाएंगे। बराबर, मतलब कि देखो हम लोग के लिए लेजी बनना आसान होता है, हम लोग के लिए एकदम जॉब के साथ एकदम सेफ रास्ते चलना एकदम आसान होता है, टाइम पास करना एकदम आसान होता है, पर सक्सेस के लिए हमें कुछ देना पड़ता है। और आपको ये सोचना है कि दुनिया वहां की वहां ही रहती है, हमको खाली ये डिसाइड करना है कि हमें किसके पास जाना चाहिए। जैसे कि आधे लोग आपके पास वो होगा कि आपको दो ऑप्शन है बराबर, कि पान वाले स्टोर के पास सब टाइम पास करते हैं वैसे लोग के पास जाए, या 1% डिफरेंट बट रियल पर्सन के पास जाए। ये एक बहुत बड़ी बात है, आप अपने लाइफ में भी ट्राई करना कि देखना आप जो आपसे आगे होगा ना वो बंदा में थोड़ा तो आपसे डिफरेंस होगा। बराबर, ये बहुत अच्छी बात है। देखो अगर एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ होगा तो वहां पे क्या होता है कि 99% लोग सेल्फीज लेते हैं, खाली 1% लोग ही ऐसे होंगे जो उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको 1% में आना है, ये टाइम पास वाले लोगों में नहीं आना है। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू विवेक, थैंक यू विवेक। तो जो विवेक ने बताया अभी हमें कि हमें 1% में आना है, 99% में नहीं आना है। मतलब ऐसा कुछ करना है जो नॉर्मल लोग उससे डरते हैं या भागते हैं। एक जन ने मुझे चैलेंज दिया था कि तू खाली इसमें खाली रैंक ला के दिखा। फिर मैं वो चली गई बाद में वो स्कूल छोड़ के, पर मेरा फिर वो स्कूल में फर्स्ट नंबर आता था। अब देखो आधे लोग क्या करते हैं कि उनको कोई धोखा दे जाएगा या कोई ऐसा बोल के जाता है ना, तो वो लोग वहां पे अटके रह जाते हैं। हमको वो सोचना है कि हम कैसे सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। पहले मैं डरपोक था ना, मेरे ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे। अभी मेरे स्कूल के फ्रेंड्स भी मेरे को इतना याद करते, मेरे को याद करते तो वो सब खुश हो जाते हैं। मतलब हमें सिचुएशन चेंज करनी है। अब देखो मैंने ना अभी 7-8 दिन पहले वो CSK का भी वो बैन हुआ था ना वो लोग, उसमें हाँ। देखो अगर क्रिकेट में से खाली दो ही चीज सीखनी है कि देखो फर्स्ट चीज तो अगर देखो एक बॉल है और 6 रन चाहिए बराबर, अगर वो 6 मार देगा तो पूरी दुनिया जीत जाएगी। और अगर हम लोग एक जन हमको ना बोलता है ना तो हम लोग रुक जाते हैं। अभी देखो क्रिकेट में वो बंदा जो खेल रहा है उसके ऊपर तो पूरी दुनिया डिपेंडेंट हो जाती है कि कितना प्रेशर होता है उसके ऊपर कि मुझे अच्छा करना है। और हम लोग को तो एक भी लोग बोल देगा कि तू नहीं कर सकता तो हम नहीं करते। और दूसरी चीज है क्रिकेट में कि देखो अभी आपने पहले भी देखा होगा कि विराट कोहली फर्स्ट नंबर पे नहीं था, उसके पहले AB डिविलियर्स था, उन दोनों में टक्कर चलती रहती थी।
कि एक बार कोई पहले जाता था, एक बार कोई फर्स्ट पे आता था, कोई सेकंड पे आता था। मतलब लाइफ में ऐसा नहीं कि फर्स्ट ही आना मेन रखा है, तो हमें हमारा अच्छा देना चाहिए 100%, जब पॉसिबल हो तभी देना ही चाहिए। राइट थैंक यू राइट। सर। Hello friends, my name is Prashant Baradwan from Indian Navy. आज मैं आपको ऐसे 5 सीक्रेट्स जो लाइफ में हमें हमारी लाइफ में इन्वॉल्व करने हैं, ऐसे लाइफ सीक्रेट में बताने जा रहा हूँ आपको। और उसका ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं तो मैंने अगले लेक्चर में जब दीवान जी के साथ मैंने अगला इसके पहले मैंने लेक्चर किया था, तभी मैंने 5C याद है ना सर आपको? हाँ 5C, 5A और 4T ऐसे 3 अल्फाबेट किए थे, आपको बोल रहे थे मैंने। राइट। और आज इसमें से मैं बीच वाला 5A लेता हूँ, क्योंकि आज सब कुछ ऐसे लाइफ में काम आए ऐसा ही सब लोगों ने बोला है, इसलिए 5A बोलता हूँ मैं। 5A में पहला ए मीन्स के अल्फाबेट ए है एबल, मीन्स के क्षमता। आप लोगों में इतनी तो क्षमता, पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है, इसका मतलब यही है कि आपसे अच्छा कोई नहीं है, ऐसा समझकर सब कुछ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो होशियार है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उसको ये ज्यादा आता है, मुझे वो ज्यादा आता है। कुछ भी नहीं करने की जरूरत कुछ भी नहीं है आपको। आप प्रॉपर तरीके से एबल ही हो पृथ्वी पर। किसी को कुछ भी, किसी के साथ कभी भी अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो। किसी की क्षमता देखकर अपनी क्षमता, कई लोग सर ऐसे होते हैं कि किसी का देखकर अपनी क्षमता गुमावे, मीन्स के गुमा ही बैठते हैं कि इसमें वो है, मुझ में वो नहीं है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाते और वो आगे निकल जाता है। ऐसा होता है। पहला ए है मेरा एबल, दूसरा है एब्सॉर्ब, मीन्स के सोशल लेवल, मीन्स के અત્યારે પૃથ્વી ઉપર આપણી अर्थ ઉપર ऐसा चल रहा है सब कुछ कि अच्छे व्यक्ति है। जैसे मैं कहूँ तो दीवान जी जैसे लोग हैं, जिग्नेश दीवान जी सर जैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सारे महापुरुष है, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है। उन सब लोगों से हमें कुछ ना कुछ ऐसा सब कुछ सोच लेना चाहिए। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सब कुछ एब्सॉर्ब कर लेना चाहिए, क्योंकि यही दुनिया में 100 में से 4 या 3%, मेरे अंदाज से 4 या 3% लोग ही ऐसे हैं जो हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए पीछे सपोर्ट करते हैं। वरना 97% लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, 97% लोग ऐसे ही है कि आप थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे ना तो आपके पैर खींचेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। राइट। सो मैं जिग्नेश सर का भी थैंक यू, मैं बार बार उनको थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि आज उसका लेक्चर आया था मेरी कॉलेज में, इसके लिए ही मैं इतने से ही मैं इतना बोल रहा हूँ। वरना मैं कभी भी स्टेज में 2 या 3 बार ही गया था, अभी मैं सामने से सर को बोल रहा हूँ। इसलिए सब कुछ एब्सॉर्ब करना चाहिए लाइफ में, अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का नहीं। मैं ऐसा नहीं बोला कि बुरे लोगों का करना चाहिए, बुरे लोगों का कुछ भी नहीं करना चाहिए। बुरे लोग क्या है कि आपको गलत रास्ता ही बताएंगे, वो जैसा है वैसा ही आपको बताएंगे। वैसे आप सब लोगों ने वो सुना ही होगा ना कि एक नेगेटिव व्यक्ति, मीन्स के एक नेगेटिव पर्सन, वो अपनी पूरी लाइफ, अगर अपनी लाइफ में कोई नेगेटिव पर्सन आ जाए अगर, तो वो अपनी पूरी लाइफ नेगेटिव बना सकता है। राइट। आपको याद ही होगा, ऐसा कहीं पर भी लिखा होता है, मैंने ऐसा पढ़ा है। अभी तीसरा ए है एक्सेप्ट, मीन्स के स्वीकार। सब कुछ जिंदगी में, मीन्स के अपनी लाइफ होती है जो, उसमें सब कोई भी कंडीशन आए, कुछ भी अगर हो जाए, उसमें हमें सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता ने, वो नहीं कर सकता ने, ऐसा ने वैसा ना है, कुछ भी किसी को भी कुछ भी बोल देना नहीं, ये नहीं करना चाहिए हमको कभी भी। क्या है, इससे हमारी लाइफ को भी तकलीफ हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। इसीलिए पहला ए है एबल, दूसरा ए है एब्सॉर्ब, तीसरा ए है एक्सेप्ट। अभी चौथा ए है मेरे पास एक्टिव, मीन्स के लाइफ में हमें आज क्या हुआ, आज सुबह क्या हुआ, शाम को क्या होगा वो नहीं सोचने का। सुबह से क्या हुआ, हम अभी कितना बजे, तो 4:32 हुई, तो 4:32 और सुबह के बीच में क्या हुआ, उस वक्त का ही हमें एक्टिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा सोचो, ऐसे पास्ट में सोचो ने ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें लाइफ में। अगर लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम हमें एक्टिव ही रहना है,
ऐसा नहीं कि पीछे चले जाओ, आगे का सोचने लगो कि मेरे साथ वो होगा ना, वो होगा ना, ये हो गया नहीं हो गया, सब कुछ छोड़ दो, अभी का सोचो। इस मिनट पे क्या हो रहा है आपके साथ, इस मिनट में क्या नई एक्टिविटी होने वाली है इंडिया में, इस मिनट पे क्या हो रहा है अपनी अर्थ पे, उसमें एक्टिव रहना चाहिए। प्रेजेंट में रहना। 4A हो गया, एबल, एब्जॉर्ब, एक्टिव, एक्सेप्ट एंड एक्टिव। अब ये 4A है, अगर ये 4A आपने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिए पूरी तरह से, अच्छी तरह से, तो 5वां A ऐसा है, ये है अचीवमेंट, मीन्स के सिद्धि। अगर ये 4A आपने अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिए तो 5वां जो 5th A है, मीन्स के अचीवमेंट, वो 100 से 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 5वां A जो है सिद्धि वाला, मीन्स के अचीवमेंट, वो अपनी लाइफ में जरूर होगा और होगा ही। अगर ये 4A जो ऊपर के है वो अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व किए तो इसमें कुछ भी कहीं पर भी त्रुटि नहीं रखनी है अपनी लाइफ में। ये 5A है मेरी तरफ से बनाए हुए, ये ऐसे A है कि अपनी लाइफ में इन्वॉल्व ही करने हैं। इसमें एक A भी ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में काम ना आए। आप सब लोग ये बता सकते हैं मुझे, अगर इसमें से एक A भी गलत है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, किसी भी कोई भी कंडीशन में मुझे एतराज नहीं है। अगर मेरा कोई कुछ भी मुझे कहे ना, मैं खुशी रहता हूँ। जैसे अभी विवेक ने बताया हैप्पीनेस, किसी भी बात में खुशी रहना चाहिए। सर मैं आप प्रशांत भाई, हाँ તમે કીધું ને બોલો કે બોલો। હા તો મેં શું કીધું તમને કે આયરો ડિફરન્ટ ધેટ મેક્સ ડિફરન્સ, આ વાક્યમાં કઈ એવું લાગ્યું નહીં, પણ આપણે વિચારીએ તો હમણે શું કીધું કે આપણે લોકો પાછળ ખેંચે છે, બરાબર? તમારી લાઈફમાં આવું બહુ બધી જગ્યાએ થશે, આયરો આ વસ્તુ મેં કહું છું તમને, આમ બહુ કામની વસ્તુ છે। તમે 90% 99% લોકો કઈ બાજુ વિચારે છે એના પર જ મેં કીધું છે તમારા લોકો। हमने कीधुं कि 90% લોકો તમને પાછળ ખેંચવાની ટ્રાય કરે તો તમારે એવું જ વિચારવાનું કે એરા લોકો આપને વધારે શીખવે છે। હવે મિશન મંગલમાં બી અક્ષય કુમાર એ જ કહે છે કે જ્યાં સુધી તમારા બેટર અપોઝિટ સાઈડના લોકો બેટર નહીં હશે એકદમ જ જબરજસ્ત, તમારો આખો નીચોડી લે ત્યાં લગીને તમે સક્સેસ એટલી બધી જબરદસ્ત નહીં પાવો। ભાઈ તમે જ્યારે સક્સેસ મળો ત્યારે આખી દુનિયા તમારા માટે રડતી હશે કે આમને કેટલું ખતરનાક કરી બતાવ્યું। થેન્ક યુ પ્રશાંત। Right. Okay, thank you, Prashant. Okay, thank you very much, everybody. Bye bye. Have a nice time.